Assalamualaikum class 6th. I hope you all are fine and good at your places and staying home to be safe from this pandemic. So class 6th, in our previous lecture we have started our last chapter of second term, which is the White Mouse Circus. We read the chapter and I translated the chapter for you, and we did difficult meanings of the words. After this, in today's lecture, we are going to complete our questions, answers and all the exercise of this chapter. So, first of all, open your books in front of you, page number 63. Here you can see the exercise of this chapter, and I am going to solve this exercise for you. If you have opened your books, here you can see the question answers, and the first question of this exercise is comprehension and answer the following questions. Question number A you can see on your books is, what reason did the grandmother give for going to Bournemouth? दादी माँ ने ब्राउनमाउथ जाने के लिए क्या रीजन दिया था? Answer you can see on your screen is, the grandmother decided to go to Bournemouth in order to obey her doctor's order. ग्रैंडमा ने ये फैसला किया था ब्राउनमाउथ जाने के लिए क्योंकि वो अपने डॉक्टर का कहना मानना चाहती थी, क्योंकि उसके डॉक्टर ने उसे वहां जाने के लिए ऑर्डर किया था. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए. नाउ यू आर looking for question number B, and the answer is on your screen. How does the boy describe the hotel? लड़के ने होटल को कैसे डिस्क्राइब किया था? It was an enormous white building on the sea front, and it looked to me like a pretty boring place to spend a summer holiday in. वो कहता है कि ये बहुत सारी बिल्डिंग्स में से एक वाइट बिल्डिंग थी जो कि समंदर का फ्रंट, जिसके सामने समंदर का फ्रंट लग रहा था, और ये देखने में बहुत ज्यादा बोरिंग लग रही थी कि यहाँ पे समर हॉलीडेज को स्पेंड करना इंतहाई बोरिंग है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सी, एंड क्वेश्चन नंबर सी इज, why had the grandmother given the boy a pair of white mice? कि दादी माँ ने लड़के को चूहों का एक सफेद चूहों का जोड़ा क्यों दिया था? आंसर नंबर सी यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज, द ग्रैंडमदर हैड गिवन द बॉय अ पेयर ऑफ व्हाइट माइस एज कंसोलेशन बिकॉज बोर्नमाउथ वाज अ बोरिंग प्लेस. दादी माँ ने लड़के को व्हाइट सफेद चूहों का जोड़ा इसलिए दिया था ताकि वो उसको कंसोल कर सके, क्योंकि बोर्नमाउथ जो थी वो एक बहुत ज्यादा बोरिंग जगह थी रहने के लिए. Question number D is, what was the first trick the boy taught the mice? वो पहली कौन सी ट्रिक थी जो लड़के ने चूहे को सबसे पहले सिखाई थी? The answer is, the first trick the boy taught the white mice was to creep up the sleeve of his jacket and come out by his neck. पहली ट्रिक जो लड़के ने उस सफेद चूहे को सिखाई थी वो ये थी कि बाजू, उसकी जैकेट के बाजू के ऊपर से रेंगते हुए अंदर जाना और गर्दन से बाहर आ जाना. एंड क्वेश्चन नंबर एफ इज, you can see on your screen. You can see question number E on your book, and the answer is on your screen. Why did the hotel manager get angry with the boy and his grandmother? होटल का मैनेजर उस लड़के से और उसकी दादी से गुस्सा क्यों हो गया था? आंसर नंबर E on your screen. The hotel manager was angry with the boy and his grandmother for suggesting that hotel was full of rats. होटल मैनेजर इसलिए गुस्सा था दादी से और लड़के से क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आपका होटल जो है वो चूहों से भरा हुआ है. क्वेश्चन नंबर एफ इज, व्हाट मेड द बॉय कॉन्फिडेंट दैट ही हैड फाउंड अ गुड प्लेस टू ट्रेन हिज माइस? लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आया था और उससे कैसे अच्छी जगह मिली थी कि जहां पे वो अपने चूहों को ट्रेन कर सकता था? आंसर नंबर एफ इज, द बॉय फाउंड अ बॉल रूम्स विच वॉज लार्ज एंड एम्प्टी. लड़के को एक ऐसा कमरा मिला था जो कि बहुत बड़ा और खाली था. नाउ मूविंग ऑन टू दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट. वो कह रहे हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इन्हें पहले डिस्कस करें. सो क्वेश्चन नंबर जी, इन व्हाट वेज was the grandmother a clever and thoughtful lady? वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे ये पता चलता है कि दादी माँ एक चालाक और बहुत समझदार औरत हैं?
Answer is the grandmother said to the hotel manager that there were rats in the hotel and it might be closed down if this fact was reported to the public health authorities. दादी माँ ने होटल मैनेजर से ये कहा था कि इस होटल में बहुत सारे चूहे हैं और ये होटल बंद हो सकता है अगर दादी माँ ये हकीकत रिपोर्ट कर दे पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज को. Question number 8 is, what difficulties might you come up against if you were training mouse? आपको कौन सी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है अगर आप किसी चूहे को ट्रेन कर रहे हैं. Answer number 8 is, I must have an extra time to train the mice and of course an empty place where I will train the mice. मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए चूहे को ट्रेन करने के लिए और ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि खाली जगह चाहिए जहां पे मैं चूहों को ट्रेन कर सकूं. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. आंसर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज आंसर नंबर ए. द क्वेश्चन इज इट्स टॉमिडोर. हमें इसका मतलब बताना है और ये बताना है कि ये कॉम्प्रिहेंशन जो है इसमें जो उन्होंने एक्सप्लेन की है दो स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर 1, एक्सप्लेन व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड टू होम इट वाज मेड एंड इट रेफर्स टू. वो कहता है कि पहली स्टेटमेंट ये है कि ये किस लिए बनाई गई थी और ये किसको रेफर करती है. और दूसरी जो स्टेटमेंट है, व्हाट डू यू थिंक इट मीन्ट बाय द ईच स्टेटमेंट. आप क्या समझते हैं कि हर स्टेटमेंट का मतलब क्या है. यू मे डिस्कस ईच वन इन क्लास. ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे. उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट में ये पूछा है कि आपके ख्याल में हर स्टेटमेंट का मतलब क्या है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, द ग्रैंड मदर टू द बॉय व्हेन ही आस्क्स हर इफ इट इज ट्रू दैट अ प्लेस लाइक ब्राउनमाउथ कीप्स पीपल हेल्दी. कि पहली बात ये है कि दादी माँ लड़के से कहती है कि जब उससे पूछा जाता है कि क्या ये बात सच है कि ब्राउनमाउथ ऐसी जगह है जहां पे लोग हेल्दी रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इट्स नॉनसेंस, ये सारा फजूल है, ये झूठ है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है. स्टेटमेंट नंबर बी इज, दे वर टेरिफिक फन. कि वो बहुत ज्यादा वहां पे क्या था, फन था, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में. सो द आंसर इज, पहली स्टेटमेंट का आंसर है द बॉय सेज दिस अबाउट द माइस हिज ग्रैंडमदर हैज गिवन हिम. लड़का ये कहता है कि जो चूहे के बारे में कि जो उसकी दादी माँ ने उसे दिया था, और इसका मतलब है टेरिफिक मीन्स ऑफ अ ग्रेट अमाउंट, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में. नंबर सी स्टेटमेंट इज, द मैनेजर वॉज अ ब्रिस्ली मैन. कि जो मैनेजर था वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला था या बहुत ज्यादा अकड़ वाला था. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट, द आंसर ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज, द बॉय सेज दिस अबाउट द मैनेजर. ये लड़के ने कहा था मैनेजर के बारे में. जब लड़के ने मैनेजर को पहली दफा देखा था तो उसे ये महसूस हुआ था, तो फिर उस लड़के ने ये कहा था. और मीनिंग है, ब्रिस्ली मीन्स पहले आएगा कि विद अ टेम्पर, बहुत गुस्से वाला, और जो दूसरा आएगा फॉर अ फाइट, लड़ाई झगड़े के लिए. ब्रिस्ली को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, पहला गुस्से के लिए, दूसरा लड़ाई झगड़े के लिए. मूविंग ऑन टू नंबर डी. द स्टेटमेंट इज, रैट्स tried Mr. Stringer going mob in the face. चूहे मिस्टर स्ट्रिंगर ये चिल्लाता है कि ये चेहरे पर कैसे उसकी एक रंग आता है, रिग जाता है. So the answer of first statement is, Mr. Stringer, the manager, says this to the grandmother when she tells him there are rats in his hotel. ये वाली स्टेटमेंट मिस्टर स्ट्रिंगर ने कही थी जो मैनेजर था होटल का दादी माँ से, कि जब दादी माँ ने उसे ये कहा था कि आपके होटल में बहुत सारे चूहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ स्टेटमेंट का, गेटिंग वेरी एंग्री. मिस्टर स्ट्रिंगर जो था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था. नंबर ई इज, मे आई सजेस्ट अ कॉम्प्रोमाइज मैडम. क्या मैं आपको एक कॉम्प्रोमाइज बता सकता हूँ मैडम जो आप मेरे साथ कर लेंगी. ये किसने कहा था और इसका मतलब क्या था. सो द आंसर ऑफ ई इज, द मैनेजर सेज दिस व्हेन द ग्रैंडमदर आस्क्स हिम. ये मैनेजर ने कहा था जब दादी माँ ने पूछा था वेदर और नॉट दे आर गोइंग टू बी अलाउड टू कीप व्हाइट माउस इन द होटल. जब दादी माँ ने उसे ये कहा था ना कि तुम ये अलाउ कर रहे हो व्हाइट चूहों और सफेद चूहों को यहाँ रहने के लिए या नहीं. तो इसका मतलब है द मैनेजर इज अफ्रेड ऑफ ग्रैंड मदर्स थ्रेट. कि जो मैनेजर था वो ग्रैंड माँ की जो धमकी थी उससे डर गया था. सो ही सजेस्ट अ सिंपल सोल्यूशन विच विल सूट बोथ पार्टीज. तो उसने एक अच्छा बेहतरीन सोल्यूशन बताया जिससे दोनों लोगों का काम हो जाएगा, यानी दादी का भी हो जाएगा और मैनेजर का भी हो जाएगा. नंबर एफ एंड लास्ट स्टेटमेंट इज,
द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द होटल वॉज अ मेज ऑफ पब्लिक रूम्स, कि जो ग्राउंड फ्लोर था वो एक भूल भुलैया थी पब्लिक लोगों के, आम लोगों के रहने के कमरों की. The answer of F is the boy says this when describing the hotel and his discovery of all the different rooms on the ground floor. ये बात लड़के ने कही थी जब वो होटल को डिस्क्राइब कर रहा था और बता रहा था कि ग्राउंड फ्लोर पे कितने सारे कमरे हैं. इसका मतलब ये है, मीनिंग है, द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द होटल अपीयर्ड लाइक अ मेज, अ प्लेस इन विच इजीली गेट लॉस्ट टू अ लिटिल बॉय. वो ये बस इसलिए, ये इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी जगह, मेज ऐसी जगह कहते हैं भूल भुलैया को जहां पे जाकर हम या कोई भी खो जाता है, खो सकता है. सो द पार्ट नंबर ए इज कंप्लीटेड. नाउ लुक एट पार्ट नंबर बी, वर्किंग विद वर्ड्स. दिस इज ऑल्सो ऑन योर बुक्स, पेज नंबर 63. पेज नंबर 63 पे ही है ये. अब इसके आंसर्स जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो. ठीक है, here you can see the first question, first answer of the first question. The first question is, why does Mr. Stringer turn mauve? What does this tells us? कि मिस्टर स्ट्रिंगर जो था उसके चेहरे पे एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था, वो क्यों था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सो आंसर है, इट टेल्स अस दैट मैनेजर इज वेरी अपसेट. ये हमें बताता है कि जो मैनेजर था वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा था. He is lived with rage, surprise, indignation and many other emotions, so much so that he turns mauve. उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस जो थी वो चल रही थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था. और वो सब क्या बातें थी? उसके इमोशंस डिफरेंट थे. वो सरप्राइज हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ या मैं क्या करूँ. तो वो ये सब जो उसकी फीलिंग्स या मूड से वो सब उसके चेहरे पर एक रंग लेकर आ रहे थे, एक रंग लेकर जा रहे थे, जो कि उसको खुद समझ नहीं आ रहा था. सो क्वेश्चन नंबर बी इज, विच अदर कलर्स आर यूज टू डिस्क्राइब पीपल्स फीलिंग्स और मूड्स? और कौन से ऐसे रंग हैं जो लोगों की फीलिंग्स या मूड्स को जाहिर कर सकते हैं? नंबर 2 का आंसर है, फियर यानी डर को व्हाइट, एशन, ग्रे. डर को सफेद कलर बताता है, एशन कलर होता है वो उसे आप कह लो ग्रेइश व्हाइट सा, और फिर ग्रे कलर. ये 3 कलर्स हैं जो किसी भी खौफ या डर को जाहिर करते हैं. एंगर, गुस्से को कौन से कलर जाहिर करते हैं? रेड, पेस, पर्पल, ब्लैक, जितने भी शार्प कलर्स हैं ना, ब्राइट कलर्स, वो गुस्से को जाहिर करते हैं. रेज किसको जाहिर करते हैं? रेड कलर को, रेडनेस, ब्लू कलर. सिकनेस, बीमारी जो है वो व्हाइट, एशर, कलरलेस. अगर बीमारी को आपने जाहिर करना है तो वो ये 3 कलर से जाहिर कर सकते हैं. और एनवे जो है वो हमेशा ग्रीन कलर से जाहिर किया जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 is, make a list of all the colors you know, then try to use them in sentences to describe how people feel like. अब वो आपसे कह रहा है कि ऐसे कलर्स की लिस्ट बनाएं जो कलर्स आपको पता है या आप जिन कलर्स को जानते हैं, और फिर उनके सेंटेंसेस बनाएं. You can see on your screens. There we go. फर्स्ट कलर इज पर्पल, ड्रीम्स, वेल्थ. पहला रंग है पर्पल जो ख्वाबों को और दौलत को जाहिर करता है. तो इसका सेंटेंस क्या होगा? पीपल मोस्टली वियर पर्पल कलर टू लुक सोफिस्टिकेटेड. लोग हमेशा पर्पल रंग पहनते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और डिसेंट लगे. रेड कलर क्या जाहिर करता है? वार्निंग को, फियर को या फिर डेंजर को. सेंटेंस है इसका, पीपल फील एक्साइटमेंट एंड पैशन टू वियर रेड कलर. लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करते हैं और पैशनफुल फील करते हैं रेड कलर को पहनकर. नंबर 3 इज ब्लू, ब्लू कलर. ब्लू स्काई को बताता है, कोल्ड, कूल, क्वाइटनेस यानी ठंड को जाहिर करता है आपके, और खामोशी को जाहिर करता है. सेंटेंस है, यू लुक कूल एंड आइसी इन ब्लू ड्रेस. आप बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो जब ब्लू रंग पहनते हो. नंबर 4 इज ब्लैक, इवल, डार्कनेस, मॉर्निंग. खौफ को, शैतानियत को और अंधेरे को जाहिर करता है ब्लैक कलर. तो इसका सेंटेंस होगा, पीपल मोस्टली वियर ब्लैक ड्रेसेस इन मॉर्निंग इवेंट. लोग ज्यादातर काला रंग पहनते हैं कौन से मौकों पर? अफसुर्दा मौकों पर या फिर अफसुर्दा मौकों पर. फिर आता है व्हाइट, प्योरिटी एंड क्लीनलीनेस, पाकीज़गी और साफ सुथरापन. सो सेंटेंस इज, पीपल फील प्योरिटी एंड क्लीनलीनेस टू वियर व्हाइट ड्रेस. लोग जो हैं
वो बहुत ज्यादा पाकीज़गी और सफाई महसूस करते हैं सफेद रंग को पहनकर। देन येलो, वार्मथ, लाइट, वीकनेस, बहुत ज्यादा हल्का फुल्का सा महसूस कराना या फिर कमजोरी का महसूस करना येलो कलर से फील किया जाता है। सेंटेंस इज पीपल मोस्टली वियर येलो कलर टू शो ब्राइटनेस एंड वार्मथ। लोग ज्यादातर पीला रंग पहनते हैं ताकि वो शौक दिख सकें और अच्छे दिख सकें। ग्रीन कलर शोज काम, नेचर, फ्रेशनेस। एंड आवर सेंटेंस इज पीपल फील काम एंड फ्रेशनेस इन ग्रीन ड्रेस। लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा काम फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं हरे रंग को पहनकर। ऑरेंज इज फॉर एनर्जी एंड सनसेट, यानी ताकत के लिए और फिर सूरज के गरूब होने के लिए। पीपल फील एनर्जेटिक एंड हैप्पी टू वेयर ऑरेंज कलर। लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक यानी कि ताकतवर और पुरजोश महसूस करते हैं और खुश होते हैं ऑरेंज रंग को पहनकर। पिंक इज फेमिनिन, स्वीट, सॉफ्टनेस। पिंक जो है वो लड़कियों के रंग को जाहिर करता है, मीठापन को और फिर बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस को, नरमपन को। सो सेंटेंस इज पीपल मोस्टली वियर पिंक कलर टू लुक स्वीट एंड हेल्दी। लोग ज्यादातर पिंक कलर इसलिए पहनते हैं ताकि वो सेहतमंद और मीठे दिखें। सिल्वर कलर हार्ड, साइंटिफिक, सख्त और साइंस को बताता है। पीपल मोस्टली वियर सिल्वर कलर टू लुक रिच। लोग ज्यादातर सिल्वर कलर इसलिए पहनते हैं ताकि वो अमीर दिखें। Question number 3 is completed. Now turn off your pages of your books on page number 64. Here you can see question number 4. Here are some words used by the author. Wait a second, I am going to read this question again for you. Here you can see answers on screens and question on your books. The question is, here are some words used by the author to describe movement. Try to find them in the passage. वो कहता है कि यहाँ पे ऑथर ने कुछ वर्ड्स को डिस्क्राइब किया है जिसे आप अपने पैसेज में देख सकते हैं। एंड यूज द इन वर्ड्स इन इंटरेस्टिंग सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। अपने जुमलों में इन वर्ड्स को हमने क्या करना है, यूज करना है। सो फर्स्ट वर्ड इज पॉप इन विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन, बगैर किसी खास वजह के। द बॉय पॉप्स इन द स्ट्रीट, लड़का गली में दाखिल हो गया। नंबर बी, ब्रस्टिंग विदाउट वार्निंग, बगैर किसी वार्न किए यानी बगैर किसी बात को कहे हुए। द एनिमी सोल्जर्स वर ब्रस्टिंग इन द सिटी एट नाइट, दुश्मनों के जो सिपाही थे वो आधी रात को शहर में घुस रहे थे। सिडल्ड एज अलोंग इन अ फ्रस्ट्रेटिव वे, किसी ऐसे चीज का किनारा जिससे आपकी कोई फीलिंग जाहिर हो। द गार्डनर साइडल्ड प्लांट्स अराउंड न्यू पेंट्स, न्यू पेंट्स नहीं है ये प्लांट्स है। ये आपको यहाँ पे एल जो है उसका डॉट लग रहा होगा और फिर नीचे आई लग रहा होगा, ये वर्ड है प्लांट्स। कि जो गार्डनर है उसने क्या किया है, एक ग्रे वो फेंस होती है ना व्हाइट कलर की, जो कि अक्सर आपके लॉन्स वगैरह के किनारों पे लगी होती है, वो पौधों के इर्द गिर्द लगा रहा है। कोई ऐसा किनारा जहाँ पे किसी भी चीज का किनारा आप कह लो, आप सिडल्ड उसे कह सकते हो, ठीक है। मार्च्ड, मूव्ड स्मार्टली फॉरवर्ड, आगे बढ़ना बहुत अच्छे तरीके से। मिलिट्री ट्रूप्स आर मार्चिंग टूवर्ड द स्टेज, आर्मी या मिलिट्री के जो सिपाही हैं वो स्टेज की तरफ मार्च कर रहे हैं। वार्न्ड विदाउट पर्पस, बगैर, वंडर्ड, नंबर ई वर्ड इज वंडर्ड, विदाउट पर्पस, बगैर किसी मकसद के। द वुड कटर वॉज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, लकड़हारा जंगल में फिर रहा था। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बता रही हूँ। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।